معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے نئی سٹوری جن کا عشق۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا میں کوئی نفسیاتی مریض ہوں؟ میرے خیالات ایسے کیوں ہیں؟ کیا مجھے کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ میں تو صرف آج سے 22 برس پہلے کے اس مافوق الفطرت واقعے کی یاد تازہ کرنے لگا تھا جسے میں بھول جانا چاہتا ہوں لیکن بھلا نہیں سکتا، جس کو بھولنے کے لیے میں خودکشی تک کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کر نہیں سکتا۔ دنیا میں انسان بے شمار حادثات کا شکار ہوتا ہے۔ ہر حادثہ اپنی جگہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن میرا حادثہ دنیا کے عام حوادث سے کچھ ہٹ کر ہے، جس کو یاد کرتے ہی مجھ پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت پرسکون تھی، گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ تعلیم کے سوا میرا کوئی مشغلہ نہیں تھا، گھر سے سکول جانا اور سکول سے گھر۔ آوارہ پھرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے میٹرک میں وظیفہ حاصل کیا تھا۔ گھر کا ہر فرد خوش آئند مستقبل کے تصور سے محفوظ ہو رہا تھا، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ اس خوشی کے پیچھے ایک ایسا حادثہ پوشیدہ ہے جو پورے خاندان پر اثر انداز ہوگا۔ مجھے کالج میں داخلہ مل گیا، میں کالجیٹ بن گیا۔ زندگی پھر بھی تعلیم تک محدود رہی۔ دوستی صرف چند ایک آدمیوں سے تھی، وہ بھی مناسب حد تک۔ بول چال کلاس کے ہر فرد سے تھی، کسی کو مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں تھا۔ ہر امتحان میں اول آتا، اس لحاظ سے بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اسی طرح 2 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ امتحانات ہوئے، نتیجہ آیا اور مجھے 3rd ایئر میں ایک نہایت اچھے کالج میں داخلہ مل گیا۔ ان گزشتہ 2 سال کے دوران کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آیا، لیکن اندر ہی اندر میرے مزاج میں نہایت عجیب قسم کی تبدیلیاں واقع ہوئی۔ میں نے مستقل ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ تنہائی پسند ہو گیا، کسی سے نہ ملتا، خود کو گھر کا فرد نہ سمجھتا اور کسی بھی گھریلو معاملے میں دخل نہ دیتا۔ گھر میں کوئی خوشی ہو یا غمی، مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ چھوٹے بھائی نے میرے سامنے جھگڑتے، لیکن میں اپنے حال میں مگن رہتا۔ خوشیوں سے مجھے نفرت ہو گئی تھی، غموں میں مجھے مزہ آنے لگا۔ یقین جانیے کہ میں اس قدر تبدیل ہو گیا کہ غموں میں مجھے لذت ملنے لگی۔ کالج سے گھر آتا تو صرف ایک خواہش ہوتی کہ اے خدا، گھر جاتے ہی مجھے کوئی ایسا غم دے جس سے بس مزہ ہی آ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لذت بھی مجھے مطمئن نہ کر پاتی۔ غموں کا اس قدر عادی ہو گیا کہ غم سے وہ خوشی حاصل نہ ہوتی جس کی میں توقع رکھتا۔ خاندان کے تمام عزیز مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے، لیکن مجھے سب سے نفرت ہو گئی۔ والدہ صاحبہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی، لیکن وہ اس کا بار بار اظہار نہ کرتی۔ مجھے اپنے والد سے ہمدردی تھی، میں انہیں نہایت عاجز سمجھتا۔ سوچتا کہ یہ بھی کتنے عظیم ہیں کہ میری والدہ جیسی عورت سے نباہ کر رہے ہیں، جو برسوں سے بیمار ہیں، جسم کانٹا ہے، بیماری کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک دن حسب معمول کالج سے گھر آیا تو والد صاحب کہنے لگے کہ چلو آج ایک آدمی کے پاس چلیں، وہ ہاتھ دیکھنے میں بہت ماہر ہے۔ میں والد صاحب کے اس رویے پر بہت حیران ہوا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی شخص بھی ہاتھ دکھانے یا تعویذ گنڈے اور جادو وغیرہ پر یقین نہ رکھتا تھا۔ خیر، والد صاحب کے کہنے پر میں ان کے ساتھ ہو لیا اور ہم اس آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ صاحب میرے والد کے ماتحت کام کرتے تھے اور فارغ اوقات میں تعویذ گنڈا بھی کرتے، جس کا باقاعدہ وہ ہدیہ بھی لیتے۔ انہوں نے میرا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ پر پین سے 2 لائنوں پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ وہ بھی ایک نے نہیں بلکہ 2 افراد نے۔
मैं ऐसी बातों पर यकीन ना रखता था, इसलिए मैंने मानने से इनकार कर दिया। इस पर वो साहब कहने लगे कि अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं तो किसी भी पामिस्ट के पास चले जाओ और उससे पूछो कि ये लकीरें क्या ज़ाहिर करती हैं। खैर, मैं चुपके से घर आ गया और इस वाक़े को भी भूल गया। घर आकर मैंने यही कहा कि ये लोग तो सब यही कहते हैं कि तुम पर जादू किया गया है, चाहे वो बीमारी ही हो। लेकिन घर वाले मुझसे मुतफिक नहीं थे। हमारे खानदान वाले हमसे बहुत जलते थे। ये अच्छा खाते पीते हैं और इनकी औलाद जेवरे तालीम से आरास्ता हो रही है। ये लोग जादूगर कहलाते थे। तावीज़ गंडे वगैरह करवाना उनकी आदत थी। हम अगरचा उनके इन कामों से वाकिफ थे, लेकिन चूंकि हमें इन चीज़ों पर यकीन नहीं था, इसलिए हम कोई परवाह ना करते। 2 माह गुजर गए। ईद पर हम अपने एक करीबी अजीज के यहाँ चले गए। ईद के 3 दिन बाद एक साहब वहां तशरीफ लाए। ये उनके दोस्त शाह साहब थे। निहायत छोटी उम्र, हाल ही में बीए किया था, अपना कारोबार करते थे, लेकिन नूरी इल्म से भी गहरा शगफ था। मुझे उनके सामने ले जाया गया और कहा गया कि ज़रा इसे देखिए, क्या बात है, रोज़ बरोज़ सेहत गिर रही है। दूसरा, हमें यह शक है कि इस पर किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने फिर वही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा मेरी सुनवाई ना हुई। मेरे दोनों हाथों में एक एक तावीज़ देकर बिठा दिया गया और कहा गया कि हाथ को बंद करके ज़ोर से दबाएं और हाथ सामने रखें। आंखें भी बंद कर दी गई। फिर उन्होंने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकना शुरू कर दिया। इस तरह चंद मिनट गुजर गए। फिर पूछने लगे, क्यों भाई, कुछ नजर आया? मेरी आंखें बिल्कुल बंद थीं और सवाई तारीकी के कुछ सुझाई ना देता था। इसलिए मैंने उन्हें बताया कि पपोटे बोझल होते जा रहे हैं। इस पर उन्होंने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे दोनों हाथों पर हजारों मन का बोझ पड़ गया और इस बोझ तले हाथों ने ऊपर नीचे हरकत शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते ये हरकत इस कदर तेज हो गई कि हाथों ने गोल दायरे में घूमना शुरू कर दिया। ये इस बात की अलामत थी कि मुझ में कुछ है। शाह साहब ने फौरन हुक्म दिया कि जो कोई भी है सामने आ जाए। खबरदार, जो हाथों को जरा जुम्बश दी। हाथ खुद ब खुद रुक गए, लेकिन मुझे कुछ नजर ना आया। हाथों की जुम्बश फिर शुरू हो गई। मैं लाख कोशिश करता कि हाथ ना हिले, लेकिन मैं बेबस था। मेरे हाथ मेरे बस में नहीं थे। ऐसे मालूम होता था कि जैसे कोई और कुव्वत उन्हें बड़ी तेजी के साथ घुमा रही है। ये हरकत 50 राउंड फी सेकंड से किसी सूरत भी कम ना थी। अब एक अजीब तमाशा हुआ। शाह साहब कहते कि जुम्बश रोको, लेकिन हाथों की हरकत तेज हो जाती। अगर दायां हाथ हरकत करता और उसे रुकवाते तो बायां हरकत करने लगता, और अगर वह उसे रोकते तो दोनों हरकत करने लगते। ये अमल कोई पौना घंटा जारी रहा। शाह साहब तंग आ गए। कहने लगे, आंखें बंद करके तारीकी में कुछ देखने की कोशिश करो। मैं देख रहा हूं कि जो कुछ है, लेकिन तुम कैसे कहते हो कि तुम्हें नजर नहीं आता? मैंने फिर नफी में जवाब दिया। आखिर तंग आकर वो कहने लगे कि इसका मतलब है कि तुम हमसे मजाक कर रहे हो। तुम हाथों को जानबूझकर हरकत दे रहे हो, लेकिन ये गलत था। मेरे हाथों को घुमाने वाली ताकत कोई और थी जो मेरी बस से बाहर थी। आखिरकार उन्होंने मुझसे तावीज़ ले लिया और मैंने आंखें खोल दी। हाथों की हरकत से सब घर वाले जो इर्द गिर्द बैठे ये मंजर देख रहे थे खासे परेशान थे, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं था। मैं कह रहा था कि चौंका हाथ सामने की तरफ फैलाए हुए थे, इसलिए ज्यादा देर तक मैं उन्हें काबू में ना रख सका। वजह यह थी कि मुझे खुद पर इख्तियार ना था। ना चाहते हुए भी मुझसे ये हरकत सरजिद होती रही। मैं बेबस हो चुका था और इस वजह से वो हरकत करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ शाह साहब फरमा रहे थे कि इस पर किसी बाहर की चीज का साया है जो बड़ी आलम फाजल मालूम होती है, जो इस तरह काबू में नहीं आती। चूंकि मेरे पास हथियार नहीं था, इसलिए लड़ता क्या, आज रात मैं बैठकर तावीज बनाऊंगा और सुबह फिर इसे देखूंगा। दूसरे रोज वालिद साहब वापस चले गए और उनकी छुट्टी खत्म हो गई थी। मुझे ताकीद कर दी गई कि मैं अपने अजीज के हमरा जाकर उनको दोबारा मिलूं और सूरत हाल से मतला करूं। सुबह 9 बजे हम शाह साहब की दुकान पर चले गए। उन्होंने
अपना काम छोड़कर मेरे हाथों में तावीज दे दिए और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हाथों ने फिर उसी तरह जुम्बश शुरू कर दी, लेकिन ये कोई आधा मिनट रही होगी और उसके बाद मेरे जिस्म ने कांपना शुरू कर दिया। गर्मियों का मौसम था और मुझे किसी किस्म की कोई सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी गर्दन से नीचे और टांगों से ऊपर का हिस्सा बड़ी तेजी के साथ हरकत कर रहा था। जब शाह साहब जरा बिगड़ते तो ये हरकत बंद हो जाती। खैर कोई 10 मिनट के बाद उन्होंने मुझे पूछा, कुछ नजर आया? मुझे सवाए एक सतून के कुछ नजर ना आया। सतून भी क्या था, एक मीनार मालूम होता था। मैं उसका ऊपर का सिरा देखना चाहता था जो नजरों से उजल था। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सतून की लंबाई कितनी होगी। शाह साहब ने मुझसे कहा कि अपने दिल में कहो, जो कोई भी है अपनी असली हालत में सामने आए। मैंने यही दोहराया, लेकिन सवाए सतून के कुछ नजर ना आया। इस पर शाह साहब ने मेरे सामने एक और तावीज रख दिया और कहा कि इससे कहो, अगर तुम ताकतवर हो तो इस तावीज को उल्टा कर दो, वरना तुम हमारी अताअत कबूल कर लो। याद रहे कि शाह साहब तमाम सवालात मेरे जरिए करते थे। एक तावीज उन्होंने अपने सामने रखा हुआ था जिसमें वो सब कुछ देख रहे थे। ये उनका रेडार था। जो ही उन्होंने मेरे सामने तावीज रखा, मेरी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी हो गई। इतनी ज्यादा कि दिन को भी इतनी रोशनी ना देखी थी। अगरचे मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन तावीज का एक एक लफ्ज मुझे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था और मैं उसे बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकता था। किसी गैबी ताकत ने तावीज को उल्टाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा ना हो सका। उसका अंदाजा मुझे उससे हुआ कि तावीज का एक कोना ऊपर उठता जैसे कोई उसे उल्टाना चाहता हो, लेकिन उलटने की बजाय कोना फिर जमीन पर गिर जाता। उधर मैं ये सब कुछ अपनी बंद आंखों से देख रहा था और उधर मेरे अजीज और दूसरे चंद अफराद अपनी आंखों से यह तमाशा देख रहे थे। तावीज उल्टाने की नाकाम कोशिश करने के चंद लम्हों बाद ही मेरी नजरों के सामने एक साया उभरा। ये एक इंसान की शक्ल थी, लेकिन कदो कामत ज्यादा। चौड़ाई तो इतनी थी जैसे 4 मोटे मोटे आदमी एक साथ खड़े हों। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था। सर पर एक टोपी थी। बंद आंखों के बावजूद मेरे सामने रोशनी थी और मैं उस अजीबोगरीब मखलूक को देख रहा था। उसके बाद सवाल जवाब का तवील दौर शुरू हो गया। शाह साहब ने जो पूछना होता वो मुझसे कहते, वो साया उसका जवाब देता और मैं अपनी जुबान में शाह साहब को बता देता। सबसे पहला सवाल जो शाह साहब ने किया था वो ये था, ये तो मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, यानी जिन, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम मुसलमान हो या ईसाई, और देखना खबरदार अगर तुमने झूठ बोला। दूसरी तरफ से उसने जवाब दिया कि वो ईसाई है। फिर सबूत के तौर पर उसने अपने सर से टोपी उतार दी। मैंने देखा कि एक बालों की लट जो अमूमन हिंदू रखते हैं लटक रही है। शाह साहब ने दूसरा सवाल किया, पीछा करके क्यों खड़े हो? हिम्मत रखते हो तो सामने मुंह करके बात करो। इस पर वो कहने लगा, ये बात नहीं, चेहरा इसलिए सामने नहीं कर रहा कि यानी बच्चा डर जाएगा, यानी कि मैं, लेकिन मैं इसे डराना नहीं चाहता। शाह साहब, तुम कब से इसके साथ हो? जिन बोला, 2 साल से। शाह साहब ने पूछा कि तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है? यहां ये याद रहे कि मैं अच्छी तरह होश में था, मेरा दिल और दिमाग ठीक काम कर रहे थे। उसने कहा, ये मुझे अच्छा लगा था इसलिए पकड़ लिया। कहां से पकड़ा था? शाह साहब ने पूछा। कॉलेज के दरवाजे के साथ जो दरख्त है, मैं वहां था। ये कॉलेज में दाखिले लेने के लिए आया। जब गेट से गुजरा तो मुझे अच्छा लगा और मैंने पकड़ लिया। लीजिए जनाब, इस तरह इस हादसे की इब्तिदा हुई, यानी कॉलेज में दाखिले होने की सजा मुझे भुगतना पड़ी। तुम 2 साल से इसके साथ रहे, तुमने इसे कोई तकलीफ ना दी, हालांकि तुम्हारी कौम चाहे किसी पर कितनी ही मेहरबान क्यों ना हो, कोई ना कोई तकलीफ जरूर देती है। शाह साहब ने दरियाफ्त किया। मुझे इससे प्यार था, मैं तो इस पर अपनी अनायात करता रहा, मैं भला इसे क्यों कर तंग करता। शाह साहब कहने लगे कि अब तुम्हें इसे छोड़ना होगा, लेकिन वो कह रहा था कि आपको मेरी मौजूदगी पर क्या एतराज है? मैंने इसे क्या तकलीफ दी है जो आप मुझे भगाना चाहते हैं? इस पर हमारे एक अजीज बोले कि इसे कांटा बना दिया जाए, और अभी कहते हो कि कुछ किया ही नहीं। इस पर वो कहने लगे कि ये मोटा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। शाह साहब ने कहा कि हमें तुमसे अपने एक दोस्त के चंद काम करवाने हैं, इसलिए हम तुम्हें अभी नहीं निकालते, अगली इतवार को तुमसे निपटेंगे।
इस पर खेल खत्म हो गया। मेरी आंखें खोल दी गईं, तावीज ले लिए गए और एक तावीज मुझे गले में डालने के लिए दे दिया गया। शाह साहब ने 1 हफ्ते की मोहलत इसलिए दी थी कि उनके एक दोस्त ने कुछ जमीन खरीदनी थी और वो ये काम इस जिन से लेना चाहते थे, लेकिन यही मोहलत मेरे लिए दहशत और हादसे का सबब बन गई। घर पहुंचकर सबको तफसील बताई। मेरा कॉलेज भी खुलने वाला था। दूसरे वाले साहब को भी यह पैगाम देना था कि यह काम 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। इसलिए फैसला यह हुआ कि मैं वाले साहब के पास चला जाऊं और अगली इतवार वापस आ जाऊं। मजबूरन जाना पड़ा, चूंकि दूसरी सूरत में वाले साहब परेशान होते। यकीन मुझे अब भी नहीं था कि मुझ पर किसी जिन का साया है। आप कहेंगे कि मैं किस किस्म का आदमी हूं, लेकिन हकीकत यह है कि चौंका मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन ना रखता था, इसलिए अब भी इकरार करने में हचकिचाहट महसूस कर रहा था। लेकिन जब उस तेज रोशनी का ख्याल आता जो मैंने अपनी आंखों से बंद होते हुए भी देखी थी, तो फिर मुझे इकरार करना पड़ता। खैर, इस कश्मकश में दिन के 12 बज गए। पहले तो मेरे वालिद साहब के पास जाने को जीना चाह रहा था, लेकिन अब ये हालत थी कि मैं हर कीमत पर और इसी वक्त उनके पास पहुंच जाना चाहता था। यहां तक कि मैंने दोपहर के खाने की भी परवाह न की और चल पड़ा। तावीज जो गले में डालने के लिए दिया गया था वो डोरी ना होने की वजह से डाल ना सका और उसे वहीं भूल आया। तबीयत हशाश बशाश थी, लेकिन सफर के इख्तिताम पर जो ही मैं बस से उतरा, मेरा जिस्म बोझल हो गया। सारे जिस्म में दर्द महसूस होने लगा। ऐसे मालूम होता था कि जैसे तेज बुखार ने आ लिया हो। लेकिन क्या यह बुखार बस से उतरते ही चढ़ना होगा और इसका एहसास इससे पहले क्यों नहीं हुआ? इन बातों का जवाब मेरे पास ना था। बस स्टैंड से घर तक का फासला तय करना नामुमकिन हो गया। मेरी आंखें सुर्ख होकर बाहर को निकल आईं। कदम आगे रखता, लेकिन वो पीछे को पड़ता। 1 फरलांग का फासला बेमुश्किल आधे घंटे में तय किया। घर जाते ही मैं बिस्तर पर लेट गया। मेरा एक छोटा भाई और बहन भी वहीं थे। मैंने बड़े मजे ले लेकर सुबह के वाक़े की तफसील बताई। हालांकि वो खासे परेशान थे। शदीद किस्म के दर्द की वजह से मैं नमाज मगरिब तक बिस्तर पर लेटा रहा। एक अजीब किस्म का एहसास मुझे बार बार परेशान करता रहा। मुझे ऐसे मालूम हो रहा था कि जैसे मेरे साथ एक नहायत खतरनाक किस्म का हादसा पेश आने वाला हो। दूसरे मुझे वो तावीज याद आ गया जिसे मैं वहीं भूल आया था। मेरा दिल कह रहा था कि अब भी वक्त है, वापस चले जाओ। मैंने उसका इजहार वालिद साहब से बार बार किया, लेकिन वो शायद मुझे तसल्ली देने के लिए कहते कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, खौफ खाने की जरूरत नहीं। लेकिन चंद घंटों के बाद होने वाले वाकयात ने हमारा पिता पानी कर दिया। नमाज मगरिब के फौरन बाद मैं खाने से फारिग होकर ड्राइंग रूम में अपने वालिद के पास चला गया। वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं भी बैठ गया और उनके करीब रखी हुई रंगीन तस्वीर वाली किताब देखने लगा। छोटा भाई और बहन बावर्ची अलविये में मुलाजिम के पास बैठे हुए थे। मैं तस्वीरों पर वालिद साहब के साथ तबादला ख्याल करता रहा। उस ड्राइंग रूम का एक दरवाजा बाहर लान की तरफ खुलता था। मुझे उस दरवाजे से खौफ महसूस हो रहा था, हालांकि मैं यहाँ अमूमन बैठा करता था। मैंने 3-4 दफा दरवाजा बंद किया, लेकिन वालिद साहब फिर खुलवा देते कि ठंडी हवा आ रही है। रात के 8 बज रहे थे। बत्ती जल रही थी। मैं और वालिद साहब अकेले ड्राइंग रूम में थे। लान वाला दरवाजा वालिद साहब के पीछे था और मेरा मुंह उसी की जानब था। अचानक बातें करते करे मेरी नजर सामने की जानब पड़ी तो क्या देखता हूं, मुझसे कोई 10 गज के फासले पर दरवाजे के बाहर वही साया जिसे मैंने अपनी बंद आंखों से देखा था खड़ा है। चेहरे पर नकाब, सिर्फ आंखें नुमाया, सर पर ताज जिसमें से आंखों को चुंधिया देने वाली सफेद रोशनी निकल रही थी। रोशनी इस कदर तेज और ठंडी थी कि चांद उसके आगे मानद था। और फिर नजरों से नजरें मिली, मेरी आंखें जामद हो गईं। मैंने 1000 कोशिश की कि अपनी आंखों को उससे हटा लूं या गर्दन को ही मोड़ लूं, मगर नाकाम रहा। यह सब कुछ एक लम्हे में हो गया। जब वालिद साहब ने देखा कि मैं बातें करते करते अचानक चुप हो गया हूं, तो उन्होंने नजरें उठाकर जो मेरी तरफ देखा तो जोर से एक चीख मारी। उन्होंने देखा कि मेरा जिस्म साकत है, आंखें सुर्ख और बाहर को निकली हुई हैं और एक जगह मरकूज हैं।
आंखों की पुतलियां एक जगह जामद हैं। दूसरी तरफ देखने के लिए मैं पुतलियों को घुमाने की बजाय गर्दन मोड़कर देखता हूं तो उनके हलक से एक और चीख निकली। इससे बेशतर की चीख सुनकर बावर्ची खाने से कोई पहुंचता। वो खबीस अपना काम कर चुका था। वो मेरे जिस्म में दाखिल हो गया और मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। वालिद साहब की चीख सुनकर उसने, यानी मैं, क्योंकि वह अब मुझ में था, वालिद साहब की तरफ घूरा और फिर पांव से लेकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानब देखा। जिस जिस जगह उसकी नजर पड़ती गई वालिद साहब का जिस्म बेजान होता गया, हत्ता कि नजरें दिल तक पहुंच गई। फिर वालिद साहब की एक और चीख उभरी, ओह मैं मर गया। और साथ ही बड़ी कुव्वत के साथ उन्होंने मेरी गर्दन को हाथों के साथ परे धकेल दिया। इतनी देर में अपना वो काम कर चुका था। वालिद साहब का जिस्म दिल तक बेजान पड़ा था। वो पलंग पर पड़े हुए थे। छोटे बहन भाई और नौकर भागकर हमारे गिर्द जमा हो गए। वालिद साहब का इसरार था कि मैं उनकी तरफ ना देखूं, लेकिन मुझसे उनकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। मैंने अपनी नजरें फर्श पर मरकूज कर दी, लेकिन मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा अब मेरे कंट्रोल में नहीं था। सिर्फ दिमाग मेरे बस में था और वो सही काम कर रहा था। मैं देख रहा था, सोच रहा था, आइंदा आने वाले वाकयात का तज्जिया कर रहा था, लेकिन जिस्म का और कोई हिस्सा मेरे बस में नहीं था। दिल, हाथ, पांव, गर्द हर हिस्से पर किसी और का कब्जा था। वो जिन हकीकत में जिन्नों का बादशाह था और अब वो मेरे जिस्म में था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे उस वक्त होता जब वो मेरे जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ हरकत करता। ऐसी सूरत में मुझे ऐसा मालूम होता जैसे बिजली का करंट मेरे जिस्म से गुजर रहा हो। कभी वो मेरी टांगों से ऊपर की तरफ आता और कभी बाएं हाथ से दाएं हाथ की जानब जाता। फिर उसने हम तीनों में जाना शुरू कर दिया। कभी वो मुझ में होता, कभी वालिद साहब में और कभी मेरे भाई में। घर में कोहराम मच गया। सिर्फ बहन और नौकर उस अजाब से महफूज थे, लेकिन दहशत से सब की जुबानें गंग थीं। जब वो मेरे भाई में मौजूद था तो मैंने जल्दी से नौकर को कहा, करीब से किसी मौलवी को बुला लाओ, जल्दी आना। दूसरों को कहा कि कुरान मजीद की तिलावत करो और खुद भी मैंने कुरान पाक खोल लिया, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ था, लेकिन उस वक्त ये मुझे किसी और जुबान में लिखा हुआ मालूम हो रहा था। मैं सिर्फ कलमे का विर्द किए जा रहा था। उधर शाह जिन्नात कभी बाएं दरवाजे से कमरे में दाखिल होता और अपने शिकार को दबोचता और कभी दाएं दरवाजे से आता। हम सब का बुरा हाल था। पड़ोस के लोग हमारे गिर्द जमा थे और ऊंची आवाज में कुरान पाक की तलावत और कलमे का विर्द कर रहे थे, लेकिन शाह जिन्नात की आमद का सिलसिला ना रुक सका। इतनी देर में मौलवी साहब भी पहुंच गए और उन्होंने भी पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो मुझ पर फूंकते तो वालिद साहब के जिस्म में दाखिल हो जाता और मैं चीखता, मौलवी साहब उसकी तरफ फूंक मारो, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो वहां से निकलकर मुझ में आ जाता। इसी हालत में आधा घंटा गुजर गया, जो हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। आखिर वालिद साहब ने कहा, मौलवी साहब इसकी आंखों पर दम करो। मौलवी साहब ने जो ही मेरी आंखों पर दम किया, मौलवी साहब भी उसका शिकार बन गए। उनके अपने अल्फाज हैं, मेरे कंधों पर पहले तो हजारों मन बोझ पड़ गया, फिर जिस्म में अरताज शुरू हुआ और उसके बाद शाह जिन्नात की आमदोरफत का सिलसिला शुरू हो गया। अब मौलवी साहब ने वो 2 कुरान मजीद उठा लिए, एक को सीने से लगाया और दूसरे को सर पर रखा और लगे भागने, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उस वक्त वो मेरे जिस्म में था। मैंने कहा, मौलवी साहब खुदा के वास्ते, रसूल के वास्ते यहां से मत जाइए, वरना यहां 2 जानें तलफ हो जाएंगी। लेकिन मौलवी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार न थे, क्योंकि दूसरी सूरत में खुद उनको अपनी जान का खतरा था। इतने देर में मुझे महसूस हुआ जैसे अब वो चला गया है। मैंने वालिद साहब को कहा कि अब वो चला गया है, लेकिन मेरा भाई उसे देख रहा था। वो कहने लगा, कसम खाकर कहो कि तुम वाकई चले गए हो। और फिर एक क़यामत खेज धमाके की आवाज आई। मेरे दिल में एक बिजली की लहर उठी और हलक में से गुजरती हुई जुबान तक आई, और फिर मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने मेरे जबड़ों को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से खोल दिया हो। और फिर जिस तरह कह आती है और आदमी का मुंह खुद ब खुद खुल जाता है, बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ हुआ, लेकिन कह की जगह ये आवाज आई, कसम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले तो बातें मेरे जरिए होती रही थी, लेकिन ये उसकी अपनी आवाज थी।
इस कदर तेज कि 200 गज दूर तक सुनी गई और वहां से लोग भाग कर आए। हालांकि हम सब एक कमरे में थे। उसने ऐसाई होते हुए कलमा पढ़ा था ताकि हमें गलत तासुर दे और मौलवी साहब को यह साबित करे कि वह उससे ज्यादा इल्म रखता है। मैंने वालिद साहब से कहा कि हमें फौरन अपने अजीज के यहाँ चलना चाहिए ताकि हम शाह साहब से मिल सकें, वरना हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। चुनाचा हम सब रवाना हुए। जब हम बाजार से गुजर रहे थे तो हर शख्स हैरत से हमारी तरफ देख रहा था। हर शख्स खौफजदा दिखाई देता था। चुनाचा ऊंची आवाज में कलमे का विर्द करते हम बस स्टैंड पर पहुंच गए। 10 मिनट बाद ही बस आ गई। वहां पहुंचे तो अभी तक एक कदम जमीन पर लगा था कि शाह जिन्नात आ गया। हम सब ने फिर ऊंची आवाज में कलमे का विर्द शुरू कर दिया। मेरा जिस्म तन गया और वह मुखातब हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम शाह जिन्नात के बराबर चल रहे हो? मेरे पीछे चलो। तुम्हें शाही अदाब की भी तमीज नहीं। हम सब पीछे हो गए। मैं आगे आगे चल पड़ा। 11 बजे रात ये काफिला घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने लगातार जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। हमारा एक रिश्तेदार खातून ने दरवाजा खोला, लेकिन बेशतर इसके कि वो मुझसे इस वक्त आने का सबब पूछती। मैंने कहा, माई कलमा पढ़ो, और उसके साथ ही उस पर भी दहशत छा गई। हम सब ऊंची आवाज में कलमा पढ़ते हुए सेहन में चले गए। यहां फिर कोहराम मच गया। घर वालों ने समझा कि हम सब पागल हो गए हैं, क्योंकि अगर वो मुझसे पूछते कि क्या हुआ है तो वो मुझ में आ जाता और कहता मेरी वजह से हुआ है। यहां भी पड़ोस के लोग जमा हो गए। मैं अंदर कमरे में चला गया। उस वक्त मेरा जिस्म कंट्रोल में नहीं था। अचानक मेरे हाथ ऊपर उठे और मैंने कहा, खामोश खामोश, खबरदार अगर किसी की आवाज आई, सिर्फ कलमा पढ़ो। बाद में मुझे बताया गया कि एक खातून ने मुझसे पूछा था कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। मैंने उसे जवाब दिया था, जानती नहीं किससे हम कलाम हो, तुम्हें शाही अदाब से भी वाकफियत नहीं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चूंकि मैंने इन लर्जा खेद बातों और वाकयात को भुलाने की हर मुमकिन कोशिश की है, और दूसरा ये कि मैं उस वक्त खुद होश में नहीं था, सिवाय इसके कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा था, इसलिए मैं बाज बातें भूल चुका हूं और बाद अब भी दहशत के मारे नहीं लिख रहा। दूसरों से इसलिए नहीं पूछना चाहता कि उसकी याद ताज़ा ना हो। बहरहाल मुझे इतना मालूम है कि मैं फिर कुर्सी पर बैठ गया और मालूम नहीं किसे हुक्म दिया गया कि शाह साहब को बुला कर लाओ। कोई 5 मिनट बाद ही शाह साहब पहुंच गए। हमारे कलमे का विर्द जारी था कि शाह साहब पहुंच गए। ड्राइंग रूम का दरवाजा खटखटाया गया। यकदम मुझ में एक कुव्वत सी आ गई और मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खुद खोला। शाह साहब सामने थे और सबसे पहली बात जो उनसे हुई वो यही थी, कलमा पढ़ो। लेकिन शाह साहब ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और कहा, कलमा तुम्हें मैं पढ़ाता हूं। उनका इतने कहने की देर थी कि वो यकदम बदल गया और कहने लगा, आओ शाह साहब गले मिले। और हम गले मिले। ये यकीन रहे कि ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा था, बल्कि वही खबीस चीज शाह जिन्नात थी, वरना मेरे साथ जो कुछ बीत रही थी उससे तो मैं दहशत के मारे मर जाता। शाह साहब ने हमें बाद में बताया, अगर वो शख्स जो अभी बुलाने के लिए गया था ये ना बताता कि ये सब कुछ किस वजह से हुआ है और वो अपने घर वगैरह को कील कर ना आते तो उनका भी वही हशर होता जो मौलवी साहब का हुआ। ये तो खुदा ताला ने नहायत करम और बख्शिश की थी कि उसने हम गुनाहगारों को बख्श दिया और शाह साहब के जरिए हमें इस मुसीबत से निकाला, वरना हमारी बर्बादी में कोई कसर बाकी ना रही थी। खैर फिर वही सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। शाह साहब ने कहा कि खबरदार जो कोई हरकत की, तुम या तुम्हारे साथ अगर कोई और भी है तो वह सब इसमें यानी मुझ में आ जाए। हुक्म की तामील हुई और मुझे फिर उसी तरह तावीज पकड़ा कर आंखें बंद करके बिठा दिया गया और फिर मकालमों का वसी सिलसिला शुरू हुआ जो रात 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। मकालमे हूबहू वही थे। शाह साहब ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं शाह जिन्नात हूं। शाह साहब ने पूछा, किस कबीले के सरदार हो? कैसी बातें करते हो? मैं पूरे परिस्तान का मालिक शाह जिन्नात हूं। मैं सरदार नहीं, शाह जिन्नात हूं। शाह जिन्नात, जिन्नों का बादशाह। क्या तुम वही हो जिसको कहा गया था कि तुम्हें इतवार को निकालेंगे, या तुम कोई और हो? नहीं, मैं वही हूं। तो तुमने वादा खिलाफी क्यों की? हमने वादा ही कब किया था? तुमने इसे तंग क्यों किया? इन्होंने मुझे ज़ाहिर क्यों किया? मैंने उन्हें क्या तकलीफ दी जो ये मुझे निकालने पर तुल गए?
तुम तो ऐसा ही थे, तुमने अपनी नापाक जुबान से हमारा कलमे मुकद्दस क्यों पढ़ा? ये तासुर देने के लिए कि मैं भी मुसलमान हूं और एक बड़ा आलम हूं, ताकि मुझे कोई निकालने की जुर्रत ना कर सके। दूसरे लोगों का क्या कसूर था कि तुमने उन्हें डराया? अगर कोई दहशत से मर जाता तो फिर? यही तो मैं चाहता था, और अगर आपको 10 मिनट देर हो जाती तो यहाँ 4 लाशें तड़पती हुई मिलती। किस किस की? रफी, इसके अब्बा, इसके भाई और बहन की। इस बार शाह साहब का लहजा सख्त हो गया और उन्होंने अपने सामने रखे हुए तावीज को दबाना शुरू कर दिया। उफ मेरे अल्लाह, तावीज का दबाना था कि शाह जिन्नात की चीखें निकल गईं। वो चीखा, ओह, और तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता इस तावीज को मत दबाओ, खुदा के लिए ऐसा ना करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, मैं चला जाता हूँ, कसम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, और मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन इस तावीज को मत दबाओ, मेरी जान निकली जा रही है। दूसरे ही लम्हे शाह साहब ने फिर तावीज को दबाया और वह फिर चीखा, ओह मेरे जोड़ टूट गए, मेरी हड्डियां चटक गई हैं, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन शाह साहब अब कह रहे थे, मैं तो तुम्हें इसी में रखूंगा, मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा। शाह साहब का पासा भारी था, शाह जिन्नात की चीखें निकल रही थी। जब वो चीखा तो देखने वाले कहते हैं कि मेरा चेहरा ही बदल जाता, अजीब किस्म का रंग हो जाता। यहां तक कि जो करीब बैठे हुए थे उन्हें भी खौफ महसूस होने लगता। पहले तो उसने हर किस्म का लालच दिया कि मैं तमाम दुनिया और परिस्तान के खजाने खोल देता हूं, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मैं वो मुहैया करता हूं, चंद घंटों में तुम्हें दुनिया का अजीम तरीन आदमजाद बना दूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे इससे जुदा ना करो। लेकिन शाह साहब के कलाम का असर था, अब वो मिन्नतें करता था कि खुदा के लिए मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ना आऊंगा। लेकिन शाह साहब कह रहे थे, नहीं, मैंने तो तुम्हें रखना ही इसी में है। मुख्तसर ये कि मेरे हाथ में पेन पकड़ा दिया गया और कागज मेरे आगे रख दिया गया, आंखें मेरी बंद थी और मुझे कहा गया कि यहाँ तहरीरी तौर पर इस बात का इकरार करूं कि तुम या तुम्हारी कौम में से अब कोई शख्स इस पर हमला नहीं करेगा। चुनाचा अचानक मेरे दाएं हाथ में एक बरकी रौ दौड़ती हुई आई और मेरा हाथ फौरन लिखने लगा। मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर कहता हूं कि मैं या मेरी कौम का कोई फर्द इसको या इसके अलवीद इनको कोई तकलीफ नहीं देगा। ये बात उसने 3 बार लिखी। ये कागज शाह साहब ने अपने पास महफूज कर लिया और उसे हुक्म दिया कि मेरे दाएं हाथ में आ जाए। फिर मुझे पूछा गया कि मैंने इकरार किया कि वाकई वो मेरे दाएं हाथ वाले तावीज में है। इस पर शाह साहब ने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि इसे आंखों पर फेर कर आंखें खोल लो, और मैंने ऐसा ही किया। वो दाएं हाथ वाला तावीज अब मेरे हाथ में था और आंखें खुली थीं। शाह साहब ने उस तावीज को खोलकर फिर मुझे पकड़ा दिया और कहा, इसमें देखो कि कुछ है। मैंने देखा कि शाह जिन्नात तावीज के अदाद वाले खानों में से एक में है। शाह साहब ने उसी वक्त माचिस निकाली और उस तावीज को आग लगा दी। जो ही तावीज के साथ वो जला, मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो, और फिर मैं बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो मैं अपने अजीजों में घिरा हुआ था, लेकिन अब हम सब बाखरियत थे। शाह साहब मेरे करीब बैठे हुए थे। मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अल्लाह हाफिज मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफिज।